یعنی آپ کی حدیث کے مطابق نبی کے دور میں 3 طلاقیں کتنی ہوتی تھی؟ ایک. مرد کو رجوع کا حق تھا. حضرت عمر نے سیاستاً پابندی لگا دی تاکہ لوگ طلاقیں نہ دیں اور 3 کو 3 نافذ کیا. تو یہ سیاست ہے یا دین میں تحریف ہے؟ اس کا جواب چاہیے مجھے قاری خلیل الرحمان صاحب سے، جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کو شادیوں ہم جواب دیتے ہیں نا کے علاوہ کچھ بھی. دیکھیں کتنا زہریلا سوال ہے ان کا کہ یہ سیاست ہے یا دین میں تحریف ہے. اس کا میں 2 جواب دوں گا آپ کے سامنے. پہلا جواب یہ کہ آپ سزا کے لیے جو قوانین ہوتے ہیں اس کا مطلب آپ نہیں سمجھتے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کون ہوتے ہیں کہ حرام کرنے، بلکہ آگے انہوں نے کہا بھی تھوڑا سا اور سن لیتے، چلیے آگے بھی سن لیتے، آگے تھوڑا چلا نا وہ بھی سن لیتے ہیں. آگے کچھ الفاظ ہیں انہوں نے کہ بیوی کو حرام کرنے والے کون، ایسے کچھ الفاظ ہیں تھوڑا چلا دیں. 3 کو 3 نافذ کیا. تو یہ سیاست ہے یا دین میں تحریف ہے؟ اس کا جواب چاہیے مجھے قاری خلیل الرحمان صاحب سے، جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. قاری صاحب مجھے اس کا جواب چاہیے کہ یہ سیاست ہے یا دین میں تحریف ہے. بولو نا. ایک آدمی نے 3 طلاقیں دی، اس کی بیوی حلال ہے. حضرت عمر نے کیا کیا؟ حرام. کیا خلیفہ کو ایسی سیاست جائز ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس سے بدترین دین میں تحریف کوئی ہو سکتی ہے؟ سارے صحابہ اس پہ خاموش ہوئے تو آپ صاف صاف بول لو حضرت عمر نے دین میں تحریف کی ہے. شیعہ لوگ صاف طور پہ کہتے ہیں حضرت عمر نے تحریف کی ہے، یہی حدیث پیش کر کے. آپ آدھے شیعہ بن رہے ہو، آدھے سنی بن رہے ہو، بات وہی کر رہے ہو، نوالا شیعوں سے لے رہے ہو آپ، لیکن آپ کہہ رہے ہو حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ تھا یہ. ابے بھائی صاحب، یہ سیاسی فیصلے میں بیویاں حلال حرام نہیں ہوتی. سیاسی میں یہ ہوتا ہے. روکیے، یہی سننا چاہتا تھا میں. سیاسی فیصلے میں بیویاں حلال حرام نہیں ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کا فنڈا ہے، ان لوگوں کا، مقلدین کا. یہ بار بار کہتے ہیں، جذباتی انداز میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیاسی فیصلے میں حلال کو حرام کیسے کر دیا. ارے مفتی صاحب، سزا کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں؟ جب کوئی حاکم کسی کو سزا دیتا ہے اس کا مطلب کیا؟ مثال کے طور پر مفتی صاحب، آپ نے اگر کوئی جرم کیا اور اس کے بعد آپ کو قید ہو گئی، چلو 1 سال کے لیے قید ہوگی، عمر قید ہوگی، تو عمر قید میں کیا ہوگا؟ آپ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ اپنے خود کے گھر میں نہیں رہ سکتے جس کے آپ مالک ہیں، آپ اپنے گھر کا کھانا نہیں کھا سکتے جو آپ کے لیے حلال ہے، آپ اپنی بیوی سے تعلق نہیں بنا سکتے، گھر پہ نہیں آ سکتے، بچوں کو اسکول نہیں چھوڑ سکتے. یہ ساری چیزوں پر بندش لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ اگر آپ کو کوئی سزا دی جائے اور قید کر دیا جائے تو آپ کو قید کرنے کے بعد جو بھی چیزیں جائز تھی پابندی لگائی جائے گی کہ نہیں لگائی جائے گی؟ اب مفتی صاحب، اگر آپ کو سزا دی جائے اور آپ کو قید کر دیا، آپ بولے ارے تم لوگ کون ہوتے ہو ہماری بیوی کو ہمارے لیے حرام کرنے والے؟ تم لوگ کون ہوتے ہو ہمارے گھر کو ہمارے لیے حرام کرنے والے؟ اللہ نے میرے گھر کو میرے لیے حلال کیا، اللہ نے میری بیوی کو میرے لیے حلال کیا، اللہ نے میرے بچوں سے ملنا میرے لیے حلال کیا، تم کون ہوتے ہو؟ میں نہیں مانتا اس قید کو. تو کہیں گے پاگل ہو گیا کیا، بیوقوف ہو گیا؟ آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں آپ کے لیے ان سے آپ کو محروم کر دیا جائے، وہ سہولت چھین لی جائے آپ سے، تبھی تو سزا بنے گی. ورنہ بھیا ہر مجرم کھڑا ہو کے بول سکتا ہے، کسی کو آپ قید کی سزا دے ہی نہیں سکتے. قید کی سزا دینے سے ہر مجرم بولے گا، کیا بولے گا؟ بولے گا میرا گھر میرے لیے حلال ہے، میری بیوی میرے لیے حلال ہے، تو کون ہوتا روکنے والا؟ بھائی مجھے تو شرعی اعتبار سے تو قید میں ڈال ہی نہیں سکتا، کیونکہ قید میں ڈالنے کا مطلب میں اپنے بال بچوں کے ساتھ رہ نہیں سکتا. جو اللہ نے حلال کیا تو کون ہوتا حرام کرنے والا؟ تو مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جو بھی حاکم کسی کو قید کی سزا سناتا ہے، کیا وہ شریعت میں تحریف کر رہا ہے؟ کیا وہ اللہ کے حلال کردہ امور کو حرام کر رہا ہے؟ نہیں، حرام نہیں کر رہا میرے بھائی. تو سزا کا مطلب مفتی صاحب سمجھو، سزا کا مطلب ہوتا ہے کہ جائز چیزوں سے آپ کو الگ کر دینا، جو سہولیات ہیں جو جائز آپ کو، اس سے آپ کو محروم کر دینا، تبھی تو آپ کے لیے سزا ہوگی، ورنہ سزا کیسے ہوگی؟ تو یہ سزا کا مطلب سمجھیں آپ، سزا کا مطلب سمجھے. تو خلاصہ یہ ہے مفتی صاحب، آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ اس کو سزا کو کہہ رہے ہیں کہ حلال کو حرام. اگر انہوں نے شرعی فتویٰ دیا ہوتا، سزا کی بات نہیں ہوتی، کوئی لا نہیں ہوتا، قانون نہیں ہوتا، ایسے کسی کو ایسا بول دیا ہوتا بغیر سزا کے، تو آپ کہہ سکتے تھے ایسا کیوں کر دیا. لیکن وہ قانون بنا رہے ہیں. قانون کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے لیے جائز ہے وہ چیز سے آپ کو محروم کر دیا. سزا کا مطلب ہی ہوتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ تحریف ہے، غلط ہے. انہوں نے کہا کہ سیاستاً بیوی کو حلال حرام نہیں کیا سکتا، یہ سیاستاً نہیں، یہ بطور سزا ہے، یہ بطور سزا ہے. اور جو قانون بنائے گا اس کو، قانون کو آپ سیاسی بول سکتے ہیں. تو سیاسی جب قانون بنتا ہے تو اس میں حلال چیزوں سے آپ کو دور کیا آتا ہے، لیکن اس کو حرام نہیں کیا آتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ بیوی آپ کے لیے حرام ہو گئی. مفتی صاحب کو ہمارا چیلنج ہے، جاؤ، بہت چیلنج کرتے ہو آپ نا کہ ایک کٹھا دکھاؤ. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، جاؤ ساری کتابیں چھان مارو، مجھے ایک روایت لے کر آؤ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا کہا ہو کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا تو 3 طلاق دینے کے بعد بیوی حرام. یہ آپ کو چیلنج ہے قیامت تک. مفتی صاحب آپ جا کے مجھے ایک روایت نکال کے بتاؤ. آپ جاؤ چھان مارو ساری
रिवायतें, एक रिवायत निकाल के बता दो कि उमर रजी अल्लाह ताला ने ये कहा हो कि किसी ने 3 तलाक दे दिया तो उसकी बीवी उसके लिए हराम, ये उन्होंने कहा तो हमें बताओ। उमर रजी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हराम है, बल्कि उन्होंने कहा मैं अलग कर दूंगा या अब उन पे नाफिज कर दूंगा, यानी उनकी बीवी उनसे अलग कर दिए। तो बीवी हराम नहीं हलाल ही है, लेकिन उसके बावजूद भी अलग कर रहे हैं क्योंकि यही तो सजा है। जैसे एक कैदी के लिए उसकी बीवी हलाल होती है, उसका घर हलाल होता है, लेकिन कैदी को वहां से अलग कर दिया जाता है। तो हाकिम जब अलग करता है, कैद का सजा सुनाते, तो हाकिम ये नहीं बोलता है तेरी बीवी तुझ पे हराम हो गई है, तेरा घर तुझ पे हराम हो गया, भाई हलाल ही है लेकिन तो मुजरिम इसलिए तू दूर रहे। तो ऐसे उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का भी कानून का मतलब ये था, उनकी मंशा भी यही थी कि भाई ये हलाल, बल्कि उन्होंने मेंशन भी कर दिया ना, वो कह भी दिया कि इसमें गुंजाइश थी। यानी उमर रजी अल्लाह कह रहे हैं कि बीवी हलाल ही है, गुंजाइश है, लेकिन सजा ये दे रहा हूं कि नहीं रहने दूंगा साथ में। इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक हाकिम उसको इख्तियार है ना सजा देने का, उसको कानून बनाने का इख्तियार है, आपको क्या दिक्कत है इसमें? तो मुफ्ती साहब जो आप इसमें तहरीफ का इल्जाम लगा रहे हो ना, ये बड़ा ही खतरनाक इल्जाम है। उमर रजी अल्लाह ताला ने अगर हराम कहा होता बीवी को, तब आप कहते हैं उन्होंने कैसे जो है हराम नहीं कहा है, हलाल माना है उसको, लेकिन सजा के तौर पर दोनों को जो है अलग कर दिया है। ये हराम करना नहीं है, सजा देना है, इसी को सजा बोलते हैं। सजा का ये मतलब होता, आपको सजा का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। ये तो एक जवाब हो गया, ठीक है। अब दूसरा जवाब ये है कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के कई ऐसे फतावा हैं जिसको अगर हम थोड़ी देर के लिए मान ले, थोड़ी देर के जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं ना कि उन्होंने कोई फतवा दिया, थोड़ी देर के लिए मान ले, तो सवाल ये है कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के और भी तो कई फतावा हैं, बल्कि 20 फतावा ऐसे हैं जिसे आप यानी ये हनफी दुनिया बालाए ताक रखी हुई बिल्कुल भी नहीं मानते। ये अहनाफ उमर रजी अल्लाह ताला को नहीं मानते। मैं एक दो आपके सामने गिना भी देता हूँ। उसमें आपका ये जोश कहाँ चला जाता? यानी उसमें आप उमर रजी को नहीं फॉलो करते, तो क्या आप लोग उन तमाम मामलात में उमर रजी अल्लाह ताला पर माज अल्लाह तहरीफ का इल्जाम लगा रहे हैं? एक सहाबी की अजमत और ये जज्बाती बातें सिर्फ तलाक के मसले में ही क्यों, जब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दूसरे मसाइल आपके सामने पेश किए जाते हैं जिनको आप नहीं मानते, वहां आप ये क्यों नहीं कहते कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तहरीफ किया? माज़अल्लाह, हिम्मत हो तो कह के बताओ। अब आइए मैं आपके सामने मिसालें दे दूं कहां कहां ये लोग पेश करते हैं। मैं एक दो आपके सामने पेश करता हूं, जरा देखें। जैसे एक मिसाल ये है कि आप फ़िक़्ह हनफी में आप पाएंगे कि ये लोग इमाम के पीछे सूरे फातिहा के कायल नहीं है, जबकि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुतल्लिक कई रवायतें मुस्तदरक हाकिम वगैरह में कि इमाम के पीछे चाहे बुलंद आवाज से क़िराअत हो रही हो या सिरन, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सूरे फातिहा पढ़ने के कायल थे। आप क्यों नहीं मानते? इस मसले में उमर रजी अल्लाह क्या आपके नजदीक माज़अल्लाह तहरीफ किया? ऐसे ही सूरतुल हज में उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सजदा किया, आप क्यों नहीं मानते? ऐसे ही उमर रजी अल्लाह, सही बुखारी की रवायत है कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक सजदे तलावत वाजिब नहीं है, आप क्यों वाजिब बोलते? ऐसे ही चौथी मिसाल, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ना चाहिए, मुअत्ता की रवायत है, आप क्यों नहीं मानते? उमर रजी अल्लाह का पांचवा फतवा ये है कि असर का टाइम कब है? एक मिसल साया हो जाए तो असर का टाइम है, अल औसत इब्न मुंज़िर की रवायत है, आप क्यों नहीं मानते? उमर रजी अल्लाह ताला ने हज तमत्तु से मना किया, सही बुखारी की रवायत है, ये छठी मिसाल है, आप क्यों नहीं मानते? सातवीं मिसाल, उमर रजी अल्लाह ताला ने उम्मे वलद जो है लौंडी को खरीदो फरोख्त से मना किया, उनका फतवा सुनन वगैरह में सही सनद से साबित है, ये अहनाफ क्यों नहीं मानते इसको? आठवीं मिसाल ये कि उमर रजी अल्लाह ताला के नजदीक मफकूदुल खबर शौहर की बीवी, यानी वो बीवी जिसका शौहर मिसिंग हो, वो कितना वेट करेगी? उमर रज़ी कहते हैं 4 साल इंतजार करेगी, मुअत्ता की रवायत है। ये हनफी दुनिया ये 100 साल क्यों इंतजार करवाती भैया? नौवीं मिसाल, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक ये जो हलाला करते हैं ना, हलाले को उन्होंने ये कहा है कि ज़िना कहा है, और सिर्फ ज़िना ही नहीं कहा बल्कि कहा है अल मुअल्ला वगैरह की सही रवायत है, मैं पूरी तखरीज आप मेरी किताब अहकाम तलाक में देख सकते हैं। उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मैं किसी को हलाला करते हुए पाया तो रज्म कर दूंगा, रज्म, सजाए मौत दे दूंगा उसको। आप लोग क्यों हलाले करवाते? हलाला सेंटर खोल के बैठे हो, यहाँ उमर रजी अल्लाह ताला याद नहीं आते? यहाँ उनका फतवा याद नहीं आता? आप हलाले सेंटर खोल के बैठे हो और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अगर मैं पा गया किसी को हलाला करते हुए तो उसे रज्म कर दूंगा। ये उमर रजी अल्लाह का 9वां फतवा जो हनफी दुनिया नहीं मानती है। 10वां फतवा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का, वो कहते हैं कि बगैर वली के किसी ने शादी किया उस पे कोड़े लगेंगे, सुनन सईद मंसूर वगैरह की रवायत है। ये हनफी दुनिया कहते हैं नहीं, बगैर वली की शादी हो जाती है। 11वां फतवा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का, उनके नजदीक एहराम की हालत में निकाह ममनू है, ये कहते हैं नहीं हो जाएगा। और 12वां फतवा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का, कहते हैं कि गुलाम अपनी बीवी को सिर्फ 2 तलाक दे सकता है, हनफी दुनिया भी नहीं मानती। और 13वां फतवा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कि जबरदस्ती की तलाक नहीं मानी जाती है, ये मुफ्ती साहब कहते हैं हो जाती है जबरदस्ती की तलाक। उमर रजी अल्लाह ताला कहते हैं नहीं होती है, कहते हैं नहीं हो जाती है।
14वां फतवा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, नमाज में रुकू से पहले रुकू के बाद जो है रफुल यदैन करते थे, नमाज में तवर्रुक भी करते थे चौथी रकत में। ये हनफी दुनिया नहीं इस पे अमल करती है, ये बताइए इसमें उमर रजी अल्लाह के बारे में क्या कहेंगे। इसी तरह से 15वां फतवा उनका हद में तलाक से मुतालिक है, जिसमें मेरी एक मुस्तकिल वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें भी उमर रजी अल्लाह का जो मौकिफ है हनफी दुनिया उसके खिलाफ है। 16वां फतवा उमर रजी अल्लाह का फतवा है कि अपनी बीवी को किसी ने अंत अलैया हराम कहा तो उससे 3 तलाकें पड़ जाएंगी, ये नहीं मानते। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ वगैरह में जो ये रवायत है उमर रज़ी अल्लाह की, ये लोग नहीं मानते। 17वां फतवा उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कहते हैं कि 10 दीनार यानी इससे कम यानी रुबे दीनार या इससे जायद की चोरी पर हाथ काटना दुरुस्त है। हनफी दुनिया इसे नहीं मानती है उमर रज़ी अल्लाह के फतवा। 18वां फतवा उमर रज़ी अल्लाह का, उनके नजदीक जब हलाल है, जब ये इसको हराम करके रखे हुए हैं। 19वां फतवा उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कि बटाई पे खेत देना जायज है, इनमें से कई लोग उसको हराम कहते फिरते हैं। 20वां फतवा उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कि मुद्दते इला अगर गुजर जाए तो उसके बाद रुजू है तलाक। इसके मसले में उमर रज़ी अल्लाह का जो फतवा है इसके खिलाफ है। कि कुल 20 मसाइल है, 20 मसाइल है उमर रज़ी अल्लाह के फतवा, 20 फतवा है जिसके खिलाफ हनफी दुनिया जाती है। इसमें आपको याद नहीं आता कि उमर रजी अल्लाह तआला ने क्या कहा है? ये 3 तलाक के बारे में वो भी उनका फतवा नहीं है। ये जो 20 चीजें मैंने आपको बताई है बाकायदा फतवा है उनका, यानी शरई फतवा, फिक़ही फतवा है। इसमें यह हनफी दुनिया 20 मसाइल में उमर रजी अल्लाह तआला को किनारे करके रखी हुई है। ये लोग किनारे करके रखे हुए 20 मसाइल में उमर रजी अल्लाह के फतवा नहीं मानते। यहाँ कोई आपसे पूछे क्या इन्होंने तहरीफ किया, क्यों नहीं मानते दूसरे खलीफा को? आप 20 मसाइल में आप नहीं मानते हो और बड़े आप सहाबा के मानने वाले होगे, और हमने एक मसले में जिसमें उमर रजी अल्लाह का फतवा भी नहीं है, वो सियासी उनका फरमान है, उनका जो फतवा हम उसको फतवा भी मानते हैं। उनका फतवा होती है कि 3 एक ही होती थी, ये फतवा उनका फतवा हम मानते हैं, उनका मानते फतवा। और उनका जो सियासी कानून है कि इस बुराई पे कंट्रोल पाने के लिए कानून बनाया जा सकता है, हम उसको भी मानते हैं। आज भी अगर कोई ऐसा हाकिम हो, इस्लामी हाकिम हो, इस तरह का कोई कानून बना दे, अगर किसी ने 3 दे दिया तो हम उसको जो है ऐसा कर देंगे, अगर उस वक्त के हालात ज़रूफ हो उसके नजर में वो इज्तिहाद करता है, हम उसको भी मानते हैं। तो हकीकत में इस मसले में 3 तलाक के मसले में हम उमर रज़ी अल्लाह तआला के खिलाफ नहीं है। उनका जो फतवा है वो भी हम मानते हैं और कानून का जो उनके इख्तियार है वो भी मानते हैं। हम उसके खिलाफ कहेंगे अरे भाई आप लोग 20 मसाइल में उमर रजी अल्लाह तआला के खिलाफ चले गए और कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां आप ये जज्बाती बातें नहीं करते हैं। तो बहरहाल ये दूसरा जवाब था ये मुफ्ती तारिक साहब से कि आप जो सवाल कर रहे हो कि क्या तहरीफ है, कुरान और हदीस में तहरीफ होगी, उमर रजी अल्लाह तआला ऐसा क्यों कह दिया? तो आप इन 20 मसाइल में बताओ कि आप लोग जो उमर रजी को छोड़ के रखे हुए, तो क्या उमर रजी ने जो फतवा दिया था क्या कुरान में माज़अल्लाह तहरीफ का फतवा था? वो आगे बढ़ते हैं। सजा इतनी है तो बढ़ा दी उसकी सजा, कोड़े ज्यादा लगा दिए। 3 तलाक पे नबी के दौर में सजा नहीं मिलती थी, हजरत उमर ने सजा नाफिज की है, कोड़े लगाए। ये सियासी फैसला था, मेरी बीवी है और पकड़ा किसी और को दी भाई सियासतन। कुरान कह रहे तलाक नहीं हुई है और हजरत उमर कह रहे सियासतन हो गई है। तो तलाक में सियासत नहीं चलती है। अहले हदीस से मैं ये सवाल रोके यहाँ पे रोके, कहा उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा कि तलाक हो गई, यानी बीवी जो है हराम हो चुकी है। भाई हम आपको पहले समझा चुके हैं, उमर रजी अल्लाह तआला का मौकिफ समझने की कोशिश करें कि वो उनका कानून था क्या। उन्होंने कभी नहीं कहा कि बीवी जो है हराम हो चुकी है ना, उन्होंने उन दोनों को अलग कर दिया है, यानी वो साथ में रह सकते थे लेकिन वो बिल्कुल दोनों को अलग कर चुके हैं, तफरीक कर चुके हैं। तो ये जो है ऐसा नहीं कि उसको जो है हराम करार दे रहे, गुंजाइश वो तो कह रहे हैं ना, सही मुस्लिम की रवायत के अल्फाज एक गुंजाइश थी लेकिन मैं खत्म कर रहा हूं। तो सजा में वही होता है कि भाई गुंजाइश खत्म की जाती है, जो चीजें हलाल उनसे आपको रोक दिया जाता है, वरना ऐसा ना किया जाए तो फिर वो सजा हो ही नहीं सकती। दुनिया का कोई हाकिम किसी को सजा दे ही नहीं सकता। अगर मुजरिम ये ठान लेना कि आप मेरे लिए जो चीजें हलाल हराम नहीं कर सकते तो सजा दे, दुनिया का कोई हाकिम किसी को कोई सजा नहीं दे सकता। सजा तभी दी जा सकती है जो चीजें उसके लिए हलाल है उससे उसको अलग कर दिया जाए। आगे बढ़े। इससे मैं ये सवाल कर रहा हूं लेकिन इसका जवाब नहीं आता। जवाब पता है क्या होता है? मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब देहलवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि 3 तलाक़ें में अहले हदीस से इख्तलाफ है हमारा, ये भी इख्तलाफी मसला है। फलां ने ये लिखा, लिखने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। तो देखो ये इन्होंने देखिए इन्होंने कहा मुफ्ती किफायतुल्लाह, ये जो है मेरा नाम भी मिलता जुलता है, ये और मुफ्ती किफायतुल्लाह है, इनके बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे। तो वो इस मसले में इस तरह की बात जो मतलब उनके अंदर बड़ी उसत थी, इतना तशद्दुद नहीं था जैसे इन लोगों के अंदर है, बल्कि और भी कई उलमा, सिर्फ ये मुफ्ती साहब नहीं और भी, यानी मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब जो इनके आलिम थे, सिर्फ वही नहीं है बल्कि और कई ऐसे अहले इल्म हैं जिन्होंने इस मसले में जो है अहले हदीस के फतवे को तस्लीम किया है। हाँ, बल्कि बहुत सारे मामलात में अहले हदीस के पास इन्होंने भेजा है। मेरी किताब आकाम तलाक उसमें पढ़े, उसमें मैंने इनके जो बहुत बड़े मुफ्ती थे मुफ्ती शफी साहब, उनका भी मैंने हवाला दिया है कि उन्होंने भी एक मौके से ये कहा था कि जो अहले हदीस के मुताबिक ऐसा होता है इसलिए ये दुरुस्त है। और इनके कई उलमा हैं जो इसके कायल बाकायदा, बाल उलमा ने तो इनके मकाले लिख रखे हैं,
बाज हनफी उलमा जो मुआसरीन में से उन्होंने बाकायदा मकाले लिख रखे हैं कि 3 तलाक जो है एक होती है। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि किसी एक ने कहा, कई लोगों ने कहा। और जब अहले हदीस हवाला देता है इनके बाज उलमा का, तो इसका मतलब नहीं कि वही हमारे लिए दलील है ना। हमारे लिए दलील है ये सही मुस्लिम की हदीस है जो आपके गले की हड्डी है, जो आपको हजम नहीं हो रही, इतनी सारी जो आप डिटेल दे रहे हैं, और सही मुस्लिम की हदीस है, मुस्नद अहमद की हदीस है, ये साहबे कराम के आसार है, ये सारी चीजें हमारी दलील है। ये थोड़ी दलील है कि आपके किसी आलिम ने कह दिया है। हम जब बताइए अइम्मे अरबा की तकलीद नहीं करते हैं तो आपकी तकलीद करेंगे क्या? आपके कुछ बात देवबंदी और बरेलवी ने कुछ लिख दिया तो उसको हम मानेंगे, वो हमें दलील बनाएंगे? भाई हम अइम्मे अरबा की तकलीद नहीं कर रहे हैं और आप पता नहीं किस खुशफहमी में कि आप लोगों की बात हम मान लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी आगे बढ़े। इख्तलाफी मसला है, फलाने ने ये लिखा, लिखने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तो आप आइंदा बात करते हुए एहतियात करें। आप तो तलाक के मसलों में मैं तो बार बार कहता हूँ अहले हदीस लोग बहुत 2 नंबरियां करते हैं। और फर्ज कर लो ये 2 नंबरी क्या बोल रहे हैं? अहले हदीस 2 नंबरी कहता है। अरे 2 नंबरी भाई, हलाला का अड्डा आप चलाते हो, मतलब कहते हो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन क्या कहे अहले हदीस को 2 नंबरी? वो अहले हदीस जो औरतों की इज्जतों के मुहाफिज हैं, जो 3 तलाक के बाद जिस औरत की इज्जत लुट रही होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस फेल पर लानत भेजी, लानल्लाह, अल्लाह की लानत हो हलाला करने वाले पर, हलाला करवाने वाले पर। जो अहले हदीस लानतों से बचा रहे हैं खवातीन को, जो अहले हदीस औरतों की इज्जत लुटने से बचा रहे हैं, उनको आप 2 नंबरी गए। 2 नंबरी तो आप जैसे लोग हो, है जो हलाले के दरवाजे खोलते हो। बल्कि मैं किसी वीडियो में इंशाल्लाह खबर लूंगा मुफ्ती साहब की, मैं ढूंढ रहा था मिली नहीं वो वीडियो, जिसमें इन्होंने हलाले को, यानी हलाले की नीयत से अगर कोई हलाला करता है मिलाप की नीयत से तो सवाब पाएगा, इस तरह की बात इन्होंने कह रखी। ये कितनी बड़ी 2 नंबरी है भैया कि आप जनाकारी को, जिस पर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि रज्म कर दूंगा, जिस काम पर उमर फारूक का खलीफे दोम का ये फतवा और ये वार्निंग कि ऐसा अगर किसी ने किया तो उसे सजाए मौत दूंगा, डेथ पेनल्टी उसके लिए, उसको आप प्रमोट कर रहे हो। तो 2 नंबरी अहले हदीस को बोल रहे हो? ज़िनाकारी को, बदकारी को प्रमोट करने वाले आप, उसको कारे सवाब बताने वाले आप, और 2 नंबरी अहले हदीस हुए? शर्म आनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।